عز و جل نے ہم گناہگاروں کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرہ بہتر فرمائے۔ احباب گرامی القدر، لمبی چوڑی بات کیا کرنی ہے، ہر جانے والا اعلان کر کے جا رہا ہے۔ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے خاموشی کے ساتھ اس چارپائی پر اعلان کر کے جا رہا ہے، آج میں اس سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، کل تمہیں بھی اس سفر پر روانہ ہونا ہے۔ تو ہمارے محترم بھائی جو ہزاروں چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنے والے ہیں، آج ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ دو باتیں، ایک تو ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور دوسرا جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ جس کو جمعرات یا جمعہ کا دن نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے والے ہمارے اس بھائی کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر اور صبر پر اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انجینئر وقاص ملک صاحب 1 منٹ کے لیے آئے اور اظہار کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاہے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو ہو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ آج ہم برادر سعید شہزاد ناڈوی صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ سعید شہزاد ناڈوی 12 سال پہلے کی بات ہے، تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ تھے، ہمارے دوست تھے، کوٹلی جب بھی جایا کرتے تھے تو ہم سے ملتے تھے۔ ایک ایسا شخص جس نے اس ظالم سماج کے لیے ایک ننگی تلوار کی طرح بے یار و مددگار اکیلے گلیوں اور بازاروں اور کوچوں میں حق کا علم بلند کیا، بڑے بڑے ظالموں کے سامنے، آمروں کے سامنے، جابروں کے سامنے، جنہوں نے اسے کبھی تھانہ ناڑ میں بند کروایا، کبھی کوٹلی جیل میں بند کروایا اور اس کے اوپر تشدد کروایا، لیکن وہ سہتا گیا، اکیلا چلتا گیا۔ لیکن یہ کارواں رکا نہیں، لیکن اس نے ایک دن میں نے پوچھا، سعید بھائی یہ کیا منفرد انداز نکالا آپ نے قوم کو جگانے کا؟ انہوں نے کہا میں نے بڑے سنجیدہ رہ کر اس قوم کو بتایا، لیکن یہ قوم نہیں جاگی، اور اس ڈھول کی تھاپ پر میں نے اس قوم کو جگایا ہے۔ مظلوم کا ساتھی، غریبوں کا ساتھی، حق سچ کہنے والا، آج یہ مبارک دن، مبارک مہینہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کلمہ حق کہنے والا سیدھا جنت میں چلا گیا۔ ہم سب کے لیے ایک سبق چھوڑ کر چلا گیا کہ ہمیں حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ظلم کے خلاف کھڑا رہنا چاہیے۔ میل وائقین، پسماندگان، ان کے بھائیوں سے، والدین سے، عزا و اقارب سے، اہلیان ناڑ سے دلی اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ تمام بھائی اس کے مشن کو لے کر چلیں گے، جہاں پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا کے، سوشل میڈیا کے شہنواز بٹ صاحب، طارق نجم مغل سمیت، ادریس اعظم صاحب اور جتنے دوست یہاں تشریف لائے، سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ۔ سینئر صحافی محترم شہنواز بٹ صاحب، ان سے گزارش ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے زور ور جنہیں کئی پہاڑ تھے، بے زور ور جنہیں کئی پہاڑ تھے، جب آئی موت حادثات تنکے سے بہ گئے۔ سعید ناڈوی صاحب ایک چھوٹے علاقے میں پیدا ہونے والا ایک بہت بڑی شخصیت تھا۔ میں یہ بات دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، شاید یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے کوٹلی میں نے ان کو بلا کے ان کا انٹرویو شہید چوک میں کیا تھا، اور یہ سوشل میڈیا، فیس بک کی ہسٹری کا یہ پہلا انٹرویو تھا جو کہ 24 گھنٹے کے اندر 2.7 ملین پیپل نے اس میرے چینل کو سرچ کیا، جنہوں نے سعید ناڈوی صاحب کو سنا۔
मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा एजाज़ किसी शख्सियत के लिए नहीं है। ज़्यादा बलमी बात नहीं करूँगा। 4-5 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई तो 2-3 उन्होंने बातें मुझसे कही। एक कहने लगे शाहनवाज भाट याद रखना मेरा जनाजा बहुत बड़ा होगा, और दूसरी बात उन्होंने मुझे ये कही कि देखना मुझे लोग रोएंगे बड़ा। और वाकई सुबह से जब से पता चला है, मैं नहीं जानता हूँ इस इलाके में क्या हुआ है, लेकिन कोटली में समझ लें कि सफाई मातम बिछा हुआ है। आज पूरा सोशल मीडिया अगर आप सारे लोग देख रहे हो, कहीं पे कोई वजीर आजम, सदर, वजीर, पंजाब असम्बली, कोई चीज ऐसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शहजाद नाडवी कोई है, वही है। बस इतनी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनका वो जान अच्छा करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। एक सच्चा आदमी, एक छोटे इलाके में पैदा होने वाला, एक बड़े ज़ात का आदमी आज हमसे इस आर्ज़ी दुनिया को छोड़कर अपनी असल दुनिया की जानिब चला गया। अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला उनकी वो अगली मंजिलें आसान फरमाएगा। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। चौधरी महबूब चेयरमैन के लिए आपसे गुजारिश है कि चौधरी महबूब साहब के वो स्टेज पर आएं और इजहार तज़ीयत में 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत ही करता हूँ लवाकिन से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से और पूरे हल्के से। मैं समझता हूँ कि जिस तरह नाडवी साहब ने सियासत के अंदर और सियासी कल्चर एक ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि वो सच्ची बात हर आदमी के मुंह पर कर देते थे, और यही बात है जो अल्लाह ताला को पसंद आ गई। और आज एक ऐसे महीने में और ऐसे दिन में हमें वो छोड़कर जा रहे हैं जो इस बात की गमाज है कि अल्लाह ताला को इनकी ये सच्चाई और खरी बात करना ही पसंद आ गया, जिसकी वजह से आज के दिन उनकी रहलत हुई। और जुमे वाले दिन जब वो दफन हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बातें बहुत करेंगे बंदे, बातें बहुत होती रहेंगी उनके बारे में। मैं एक ही बात कहता हूँ कि सच्ची बात किसी बंदे के मुंह पर कर देना, मैं समझता हूँ यही जहाद है। और यहाँ पर भी जो लोग बैठे हुए हैं या जो खड़े हैं, जो जनाजे में आए हैं, एक तो मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, दर्जात की बुलंदी की दुआ करेंगे, लेकिन एक बात ये सीख कर जाएं कि सच्ची बात करने वाला इस महीने में और आज के दिन जाता है। अल्लाह ताला नाडवी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत मेहरबानी शुक्रिया। मलक निसार साहब से गुजारिश है कि इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम नाडवी साहब की फैमिली से, अलियान नाल से इजहार तज़ियत करता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला नाडवी साहब की अगली मनाज़िल आसान फरमाए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, जैसा कि हम सब इस पर कामल यकीन है, लेकिन नाडवी साहब का इस कदर मुख्तर मुद्दत में अलील होकर चले जाना हमारे लिए भी इबरत का बायस भी है, और हमें अपने अमाल पर तवज्जो देने की वजह से ज़रूरत है। अगर वो एक सेहतमंद आदमी 4-6 महीने की अदालत के बायस इस दार फानी से पहुँच कर जाता है तो हमारे पास भी कोई गारंटी नहीं है। तो नाडवी साहब ने, जैसे मुझसे पेशरोम करीम ने जिक्र किया कि हक सच की बात बाबा के दोहर कहने वाला एक तवाना आवाज़ थी, जो इसकी रीच कश्मीर से निकल कर पाकिस्तान और पाकिस्तान से निकल कर बैरून मुल्क तक भी, मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक मकबूल आदमी थे। और हमारी सोसाइटी का एक अलमिया ये भी है कि हमें हीरो बनने के लिए भी मरना पड़ता है। हम नाडवी साहब की शायद ज़िंदगी में जिंदा होते हुए वो कदर नहीं कर सके, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हक सच की बात बाबा के दूर किया, इसके लिए मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और मैं जो फैमिली है उसके साथ ज़्यादा तज़ियत करते हुए एक मिनट के लिए मोहतरम चौधरी साजिद एडवोकेट आपसे गुजारिश है कि इजहार करिए। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन उठन खलोन, पास होवें ते सारे हसन दूर जावें ते रोन। सईद शहजाद नाडवी एक साहिब किरदार, बाहिम्मत, जुर्रतमंद इंसान थे। मेरा उनसे ज़माना ताल्लुक़ इल्मी से तल्लुक़ चला आ रहा है। जिंदगी के बेशुमार द्वार में हम इकट्ठे रहे,
ज़माना तालिब इल्म में हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया करते थे, उस वक्त भी इकट्ठे चलते थे। सईद सिदात नाडवी जैसे चौधरी महबूब साहब ने कहा, एक सच्चा, एक खरा और मुंह पे बात करने वाला मर्द मुजाहिद था, जो कभी ना कहीं डरा है, ना झुका है, ना उसे कोई डरा सका है। सईद सिदात नाडवी आज़ाद कश्मीर के बड़े सियासी कारकुनों में से एक सियासी कारकुन था। मेरा बड़ा लंबा अरसा जो है उनके साथ एक तल्लक रहा, हम इकट्ठे चलते रहे। किसी भी मरने पे कहीं भी उसके कदमों में हमने लर्ज़िश को न देखा है। मैं लवाकिन के साथ अज़ार हमदर्दी करते हुए सईद सिदात नाडवी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मनाज़िल को आसान करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। मोहतरम चेयरमैन रजा रियासत साहिब, आपसे गुजारिश है कि इजहार ख्याल के लिए तशरीफ लाएं। मोहतरम कादिर रफीक साहिब, आप जहाँ भी हैं उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। शुरका जनाजा, आज हम जिस शख्सियत का नमाज जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर मैं हर तबका फिक्र देख रहा हूँ, बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ पे उलमाए किराम, प्रिंट मीडिया और हर तबका फिक्र जब देख रहा हूँ तो ये होता है इंसान का कैरेक्टर। मैं आज इस मौके पर बिलखुसूस अपने भाई की जो ये फैमिली है, उसका जो कबीला है, आपको अंदाजा नहीं था लेकिन मुझे अंदाजा था प्यारे भाई सईद नाडवी का कि ये किस हैसियत का मालिक है। तो जितने यहाँ हमारे भाई बुजुर्ग दोस्त यहाँ आए हैं, इस चीज का अजर अल्लाह तबारक व तआला ही आपको देगा। मैंने 48 घंटे सईद शहजाद नाडवी के साथ गुजारे। अल्लाह को गवाह जानकर मैं ये गवाही देता हूं इस हजारों के मजमे में कि ये पक्का और सच्चा मुसलमान था, और जो इसके दिल में बात होती थी, बड़े से बड़ा जाबर क्यों ना हो, सच बोलना, इसको सच से कोई भी रोक नहीं सकता था। मैंने कहा सईद भाई, जो मेरा ये फील्ड है इसमें थोड़ा सा लचक भी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे दिल में जो बात होती है मैं जबान पर लाऊं तो मुझे नींद नहीं आती। तो ये होता है कैरेक्टर इंसान का। तो आज मैं इस मौके पे उनके भाइयों को, उसकी पूरी फैमिली को और उनके चाहने वालों को मैं समझता हूं कि ये आज जो हमारे ये शख्सियत जा रही है, ये आपके लिए बड़ा ये मैं एजाज है। मैं हाल ही में इंग्लैंड से आया हूं, हजारों की तादाद में वहां चोरियां ओढ़ कर यहाँ इस मेरे भाई के लिए दुआ कर रहे थे, और मुझे कहने लगे कि एक तरफ शहजाद नाडवी को रखो और दूसरी तरफ करेंसी रखो, जो महंगी से महंगी करेंसी हम उसका इलाज कराएंगे। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। रब की जात किसी ने नहीं देखी है, उसके जो साइन हैं उससे मालूम होता है कि रब की जात है। इसी तरह मुस्लिम पक्का और सच्चा मुसलमान जब दुनिया से जाए तो जो आज उसकी गवाहियां और जिस तरह आज उसके ये जुमे और जुमरात की रात और आज जुमे को वो कब्र के हवाले हो रहा है, यकीनन ये इंशाअल्लाह ये जल्दी है। मैं एक बार फिर तमाम फैमिली और बिलखुसूस उसके भाई सबसे आज़ार तज़ियत करता हूँ, और दूर दराज से आने वाले भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसका अजर अल्लाह ताला ही आपको देगा। बहुत मेहरबानी चाहिए। दस्तगाह शरीफ गुलहार की नुमाइंदगी करने के लिए कादी रफीक साहिब, आपसे इल्तिमास है कि वो इजहार किया। इसके बाद अपने इलाके की मेज़बानी करेंगे डॉक्टर महमूद हसन साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम।
अहबाब ग्रामी, हम सब अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखने वाले हैं और महबूब करीम की खातमियत पर ईमान रखने वाले हैं कि मेरे नबी आखिरी नबी हैं। इसके बाद नबूवत का दरवाज़ा मेरे रब ने हमेशा के लिए बंद कर दिया है। मेरे ये भाई जो आज दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वक्त जनाजे का भी हुआ चाहता है, दो बातें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो मेरे भाई फरीद जो जिनके ये तायाजाद भाई थे, इनका ताल्लुक मेरे आस्ताने के साथ शकीदत, मोहब्बत, इखलास के साथ है, जिसकी हम सारे संगी मिसाल देते हैं और जिसका ताल्लुक भी, जिसकी निस्बत भी अल्लाह के दोस्तों के साथ होती है। और मेरा रब लजपाल है, अपने उन महबूब बंदों की दोस्ती की वजह से जाने वाले की भी लज पालता है। शहजाद नाडवी साहब की एक चीज जो मैंने देखी वो बहुत कम होती है, चाहे वो मजहबी की आदत है, चाहे वो सियासी की आदत है, चाहे वो माशरती और रफाई की आदत है। इन्होंने हर किसी से जाने से पहले माफी मांगी है। ये वो किरदार की इंतहा है, बुलंदी है जो कम लोगों को नसीब होती है। हम तो गुनाह में लथड़े हुए होते हैं, जुल्म भी कर रहे होते हैं, ज्यादती भी कर रहे होते हैं, फिर भी उस पर दलेरी का मुजाहरा करते हो, अपने आप को हक पर समझते हैं। लेकिन जाने वाले ने एक मिसाल कायम की है कि हर किसी से उसने माफी मांगी है, सफर आखिरत पर जा रहा हूं, जो कहा मैंने उस पर मुझे माफ कर दे। ये किरदार की अजमत है जो किसी को नसीब होती है। और दूसरी चीज मेरे रब ने जो इनके मुकद्दर में लिखी थी, कोई ऐसी नेकी इनके काम आ गई कि अल्लाह ने इन्हें जुमे की रात और जुमे का दिन नसीब कर दिया। और तीसरी बात देखें कि मेरे आस्ताने से ताल्लुक रखने वाले वो लोग जिनके सीने में अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब को महफूज किया हुआ है, आपको हर तरफ नजर आ रहे होंगे। ये भी किसी इंसान के जाने के लिए बड़ी खुशबख्ती होती है कि जिसकी नमाज़े जनाजा में वो लोग शरीक हों, जो तहज्जुद अदा रखूं, जो नमाज के पाबंद हों, जो कुरान की तलावत करने वाले हों। क्योंकि मेरे महबूब नबी ने फरमाया जिसकी नमाज जनाजा में 40 या 100 बंदे ईमान वाले शरीक होते हैं, मेरा रब उसकी बख्शिश फरमा देता है। जिसकी नमाज जनाजा में 100 से ज़ायद हाफिज़ कुरान हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कुरान वालों के सदक़े में ज़रूर बख्शिश फरमाएगा। हम सारी फैमिली की तरफ से किबला जनाब जी की तरफ से हज़ारे ताज़ियत करते हैं। अल्लाह उनके उस सफ़र को आसान बनाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन जो सईद शहजाद नाडवी की मौत की वजह से पूरी दुनिया में उनके फैंस जो गमगीन हैं। सईद शहजाद नाडवी ने कुछ ही अर्सा में अपने लाखों लोग फैंस पैदा किए और माशरती बुराइयों को भरपूर अंदाज में एक जो है ना मानी खेज जुमला मारो टोलिया टोल की सूरत में उजागर किया और लाखों लोगों को आज वो गमगीन करके दुनिया फंड से चले गए। उन जैसे कारकुन यकीन कैसे कह सकते हैं कि हमारे इलाके की पहचान थे और इस इलाके में जो हमारे माशरती रवैयों को बुराइयों की बात जिस तरह निसार साहब ने बात की, वो उन्होंने पिछड़े हुए तबके की नुमाइंदगी करते हुए भरपूर अंदाज में इन मसाइल को उजागर किया। लेकिन एक मैसेज वो आखिर जाते वक्त दे गए। उन्होंने हमने देखा है सोशल मीडिया पर जहाँ पर लाखों उनके फैंस थे, जहाँ पर वो ज़ाहिर है भरपूर अंदाज में तनकीद करते थे और दिल की बात ज़ुबान पर लाते थे। उसमें उन्होंने हर बंदे से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। ये अल्लाह ताला का उनके लिए हम समझते हैं कि इनाम है। और आज का दिन और आज की रात जिस तरह यहाँ पर बात हुई, तकरीर में बातें यही हुई कि अल्लाह ताला ने उनके लिए इनाम कर दिया। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर लोगों से माफ़ी भी मांगी और अल्लाह ताला ने उनको इनाम दिया। जिस तरह उन्होंने पिछड़े तबके की नुमाइंदगी की, अल्लाह ताला ने उनको अजर इस दुनिया में भी दे दिया और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या कहते हैं जी, आज सईद शहजाद नाडवी साहब जो सोशल मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया में उनकी एक पहचान थी, आज वो इस दुनिया पानी को छोड़कर चले गए हैं, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो यह है कि उन्होंने अपनी जो पंच लाइन थी तो मारो टोलिया टोल से जो है बहुत शोहरत की बुलंदियों पर गए, लेकिन साथ साथ हमारे लिए ये मकाम इबरत भी है कि एक बंदा जो हंसता बसता था, जो जोक्स सुनाता था, जो अपने लोगों को इंटरटेन रखता था, फिर साथ साथ माशरी बुराइयों को हाईलाइट करता था और माशरी रवैयों को बेनकाब करता था,
जो हमारी सोसाइटी के इलनेसेस हैं उनको बेनकाब करता था, लेकिन आज वो हमसे चला गया, हमसे जुदा हो गया। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया ये भी है कि हमने भी कल जाना है, तो हमें अपने अमाल पे भी गौर करना चाहिए। साथ साथ वो एक सोशल मीडिया सेंसेशन थे, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो बताए हुए जो तरीक़ाकार है, जिस तरह उन्होंने बुराइयाँ आइडेंटिफाई की, माशरे के अंदर जो तज़ादात और जो करप्शन मौजूद थी उसको बेनकाब किया, तो मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल को उनका मैसेज को आगे लेके चलना चाहिए। और ये जो उनका एक मिशन था और जो तहरीक शुरू की थी उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि हम अपनी सोसाइटी के अंदर जो घिसा पिटा निज़ाम है और जो रची हुई बुराइयाँ हैं उनको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर सकें। नाडवी बिलाशुबा इस इलाके की और इस हल्का चौड़ाई की एक जानी मानी सियासी शख्सियत थे। सैयद सिदात नाडवी की जदोजहद जो है वो ये पिछले 4-6 साल की नहीं है, ये तो एक जैसे हमारे निसार साहब ने कहा एक सोशल आइकन के तौर पर उभरे। वो स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, तालिब इल्म रहनुमा रहे हैं। कोटली कॉलेज में PSF में थे, फिर मीरपुर कॉलेज में रहे, आज़ाद कश्मीर बार में उन्होंने तलबा सियासत में उनका एक नाम था। उसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे उस वक्त, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रहे। अज़ामाबाद वो UK चले गए, इंग्लैंड के अंदर भी उन्होंने बेहतरीन कारोबार किया, और एक दोस्त अहबाब का एक वसी हल्का अहबाब उनका इंग्लैंड में भी मौजूद था। वापस आने के बाद अभी वो पिछले 10 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से अपनी जद्दोजहद कर रहे थे। वो एक आईना थे, माशरे के अंदर जो बुराई देखते थे वो बयान कर देते थे। मेरे साथी थे, मैं कई बार उनको कहता था कि नाडवी साहब थोड़ी सी डिप्लोमेसी इख्तियार करें, लेकिन इससे वो चिढ़ जाते थे। वो कहते थे जी चौधरी साहब डिप्लोमेसी क्या, हमने एक दिन मरना है, जो बात है वो मैं सच्ची करूँगा। सैयद सिदात नाडवी जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। सैयद सिदात नाडवी की आज मौत से ना सिर्फ इस इलाका नाड़, हल्का चड़ोई, ज़िला कोटली, बल्कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नडर और बेबाक सियासी कारकुन का हम समझते हैं कि खुला पैदा करके गया है। अल्लाह करे अल्लाह ताला उनके ख़ानदान में से, इस इलाके में से उनका को मुतबादल पैदा करे। सैयद सिदात नाडवी ने जो जद्दोजहद की है वो आम लोगों के लिए की है। सैयद सिदात नाडवी ने हमेशा पिछे हुए तबकात के लिए बात की, हमेशा वो मज़लूम के साथ खड़े हुए, हमेशा उन्होंने ज़ालिम का हाथ रोकने की कोशिश की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सैयद सिदात नाडवी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनके भाई मरीद हुसैन, नईम मुग़ल और दीगर फैमिली को सब्र जमील